हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाशदीप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल एडीएस वर्ल्ड। आज का वीडियो हमारा पहला एक्सेल बिगिनर्स लेसन का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम टैब में जो रिबन है उसका यूटिलाइजेशन हम प्रैक्टिकल डेटा में कहां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम डेटा डालेंगे अपने एक्सेल फाइल में, बट डेटा डालने के पहले हमें इस बात की ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हाउ शुड आवर डेटा लुक लाइक, या हमारा डेटा किस स्ट्रक्चर का होना चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, कितना बड़ा डेटा है, उस डेटा को मैं किस तरह से देखना चाहता हूँ, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ हाउ टू इनपुट डेटा एंड हाउ टू फॉर्मेट इट सो दैट इट लुक्स स्ट्रक्चर्ड। सो लेट्स गो हेड। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ कुछ डेटा लूंगा, जिसमें हम टॉप बैट्समैन जो लास्ट 2 years में रहे हैं उनका कुछ डेटा हम ग्रिड में डालेंगे और हम देखेंगे उसको हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। टू ऑल माय क्रिकेट लवर्स, प्लीज जो भी डेटा मैं दिखाऊंगा उस डेटा को ऑथेंटिक होल्ड मत करिए। इट इज जस्ट स्ट्रेट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेट, द सोर्सेज आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। सो लेट्स गो ahead and quickly add some headers. So first thing that we would want is a serial number of basically how many records I'm creating. Then I would want the name of the player, number of innings that player has played, number of 50s, or let's take the not outs that the player has, number of 50s the player has scored, hundreds or centuries, what is the highest score, the total runs, and the average score. So these are my headers that I have taken. Now let's use the home tab and see what we can use from this ribbon in order to structure our data and give data some format. Firstly, I want some standardization of the header. So what I would want is I would want to probably change the font a little bit, make it a little more as per what I feel or as per what I want the data to look as. Give it a feel of a header. So let's just give it a color and make it little distinct from the rest of the data that we will have. जो भी हम नीचे डालेंगे उससे हेडर थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तो वो हमने कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये डेटा है ये थोड़ा सेंटर अलाइन हो जाए, थोड़ा सही दिखे, तो वो हमने कर दिया है। इसे करने के लिए हमने अपने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप का यूज किया है और उससे हमने अपने फॉर्मेट चेंज किया है, फॉन्ट चेंज किया है अपना यूजिंग द फॉन्ट बार। Then we have not changed the size of the text right now, but if you want to, you can use either these points, and as you take the cursor here, Excel automatically just gives you a preview of how the number will be, or you can manually click and increase or decrease the size. We can also go ahead and make the data italics, या underline कर सकते हैं, या फिर उसको बोल्ड भी कर सकते हैं. So you can use these tabs. Now moving on to the next section in the font tab, I should go ahead and give some borders to my data, and in order to do that I should use the borders section, where in this data I will use a all border section. So basically my data will have, every cell in this data will have a border, because when I will try to print it on a piece of paper, तो ये जो सारी ग्रिड्स आपको दिख रही हैं पूरे एक्सेल में, ये इनविजिबल ग्रिड्स है और ये प्रिंट नहीं होंगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में एक पेपर पे प्रिंट हो, सो आई हैव टू गो अहेड एंड ऐड बॉर्डर्स टू माय डेटा, पुट ग्रिड लाइंस टू इट स्पेसिफिकली so that it gets printed on a piece of paper. Now we would want to go ahead and center align our data, because our data is not aligned properly. We can also see that the S here has gone out of the box, out of the S, gone inside the cell. So it is not clearly visible. तो हम चाहते हैं कि ये डेटा थोड़ा सा डिसेंट दिखे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अगर मुझे ये S जो है इसको क्लियरली विजिबल करना है, so I have to go ahead and hover up above these two columns, and in between I will get the cursor which becomes an alignment cursor, and I can select and increase the width of the column, so automatically the text in the column will become visible. But if I have to do for almost 1000 cells, then it is not possible for me to view the entire data at one glance and adjust it manually कि मुझे कितना लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने माउस को इन दोनों कॉलम के बीच में हवर करेंगे, और जैसे ही हम देखेंगे कि ये कर्सर ऐसा टर्न हो जाता है अलाइनमेंट चेंज करने के लिए,
इसको हम डबल क्लिक करेंगे, विच इज द लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस बटन, एंड ऑटोमेटिकली द कॉलम विल एडजस्ट itself basis whatever data is there in that entire column. अगर इस पूरे कॉलम में कहीं पर भी डेटा उसके विड्थ से बाहर जा रहा है, कॉलम अपने आप को उस मैक्सिमम लेंथ तक एडजस्ट करेगा। अब अगर बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें इस तरह से टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो हम सारे कॉलम्स पकड़ेंगे और डबल क्लिक करेंगे। सो ऑटोमेटिकली एवरी कॉलम विल गेट adjusted basis what is the characters in the cells in that particular column. In this case, once I did it, everything has become small because the text here is small. When I will go ahead and put data here and then align it, तो automatically वो अपने आप को फिर से अलाइन कर लेगा। अब हम जाते हैं और इसमें कुछ डेटा डालते हैं। सो डेटा डालते वक्त मैं अपने इस वीडियो को पॉज कर देता हूं because I don't want to waste all of your time. So I'll be back once I have filled up the data. So now we are back with some data, and as you can see that it's clearly not aligned properly. सारा इंफॉर्मेशन जो है सेल्स में कवर हो गया है, क्लियर नहीं है। तो मैं ये सारे कॉलम सिलेक्ट करूंगा और किसी भी एक कॉलम के ऊपर जाकर के डबल क्लिक करूंगा। सो ऑटोमेटिकली all my data gets aligned properly. Now using this alignment section, there is another thing that we can do when our data is hidden like this. उसमें हम क्या करेंगे, हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है अलाइनमेंट वाले ग्रुप में। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो सारा डेटा फिर से दिख जाता है, बट इस वक्त कॉलम अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, बट रोज अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब ये एडजस्टमेंट हो जाती है तो सारा डेटा जो है वो सेल के नीचे के सेक्शन में दिखता है। इसको हम बोलते हैं बॉटम अलाइनमेंट, जो अभी हाईलाइटेड है। बट जब हम इस तरह से डेटा रखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सेंटर अलाइंड हो, क्योंकि डेटा दिखने में अच्छा रहता है। तो दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट द डेटा and then we will click on the middle alignment. So now you see all the data has become middle aligned, which means कि वो डेटा सेल के सेंटर में आ गया है। अब विड्थ के मामले में भी अगर सेंटर में लाना है तो हमें ये लोअर सेक्शन में से डेटा को सेंटर अलाइन करना है। अब ये डेटा पूरी तरीके से सेंटर में आ गया है, तो हम वापस से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और सारे डेटा को सेंटर अलाइन कर देंगे। अब हमारा डेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिखना शुरू हुआ है, सब कुछ एक फॉर्मेट में गिर रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग अलाइंड, सो इट इज स्लोली एंड स्टेडीली गेटिंग इनटू शेप। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अनरैप कर दूंगा और इसको सेल को कॉलम को मैं अलाइन कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा फॉर्मूला डालें, और इस वीडियो में हम फॉर्मूलास कवर नहीं कर रहे हैं, हम आगे के वीडियोस में करेंगे। बट फॉर्मेटिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे अगर आपको कुछ दिखाना है तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। तो उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, और कोई भी आप फॉर्मूला जब लिखें तो आपको उसको इक्वल टू से ही शुरू करना पड़ता है। और अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5 + 5। तो इस सेल का कंटेंट आप बोलेंगे कि 10 है, बट एक्चुअली दिस सेल्स कंटेंट इज नॉट 10, द सेल्स कंटेंट इज 5 + 5। तो अभी इस सेल का कंटेंट है 5 + 5, which is giving a result of 10. Now ये जो 5 + 5 मैंने डाला है, ये एक एब्सोल्यूट नंबर डाला है मैंने 5 + 5 दोनों नंबर को डिफाइन करके एक्सेल को बोला है कि मुझे फॉर्मूला दीजिए। अब जब हम यहां फॉर्मूला डालेंगे तो हम उसमें एक दूसरा रेफरेंस यूज करेंगे जिसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस के डिफरेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक परसेंटेज निकालना चाहता हूं। वो परसेंटेज क्या होगा, वो होगा कि एक बैट्समैन अपने सारे इनिंग्स में कितने बार 100 बनाया, उसका एक परसेंटेज निकालेंगे हम। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू और हम सिलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर सेल जहां पर उसका 100 उस रो में दिख रहा है। इन दिस केस the first one is 11, which is column F, row number 2, which is F2. आपको यहां F2 दिख गया। इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे नंबर ऑफ इनिंग्स, which is column number C, row number 2, C2 के साथ। So F2 divided by C2, इसका मतलब ये फॉर्मूला 11 divided by 40 करने वाला है। Once we hit enter, we get a result here.
Now using the fill cursor which we have spoken in our first video, we will double click and we will fill the formula in all the rows. ये करने के बाद ये जो डेटा है ये मुझे परसेंटेज के हिसाब से तो दिख नहीं रहा है, तो इसको परसेंटेज करने के लिए हम नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे और इस छोटे से बॉक्स को क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलेगा। इस फॉर्मेट सेल्स में हमको बाकी ग्रुप्स के भी टैब्स दिखेंगे, जैसे कि फॉन्ट, अलाइनमेंट हमें यहां दिख रहे हैं, लेकिन हम अभी नंबर से इसको सिलेक्ट किए हैं तो नंबर का फॉर्मेट हाईलाइट होके ओपन हुआ है। अगर हम अलाइनमेंट के सेक्शन से ओपन करेंगे तो अलाइनमेंट का सेक्शन ओपन होता है, बट यहां से भी हम नंबर टैब में क्लिक करके नंबर में जा सकते हैं। यहां पर आकर के हमें परसेंटेज चाहिए तो हमने परसेंटेज पे क्लिक किया और अब हम ओके करेंगे तो हमारा सारा डेटा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ये बहुत सिंपली यहां से भी होता है। मैंने ये आपको इसके लिए ओपन करके दिखाया है बिकॉज एक नंबर को हम सिर्फ परसेंटेज नहीं या बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में भी दिखा सकते हैं। जनरल, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट्स, डेट, टाइम, फ्रैक्शन, टेक्स्ट, कस्टम भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये वाले फॉर्मेट सेल्स के बॉक्स में लेके आया हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी फॉर्मेट्स। इफ व्हाटएवर फॉर्मेट वी वांट, it can be taken from this particular section. Now let's go ahead and give this another header. Let's say percentage of hundreds. इसको हम डबल क्लिक करके अलाइन कर देंगे। इसके हेडर को हमने कॉपी कर लिया। अब हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि हम इस पूरे डेटा को ग्रिड में डाल देते हैं। सो इस केस में मैं ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप बहुत कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द लाइन कलर। सो अगर मुझे एक डार्क ब्लू लाइन चाहिए तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं ब्लू सिलेक्ट करूंगा मेरे को पेन टूल मिल जाता है, बट मैं इसको आई कैन जस्ट हिट द एस्केप बटन ऑन माई कीबोर्ड एंड द पेन टूल विल गो अवे। और उसके बाद मैं वापस डेटा सिलेक्ट करके जब ऑल बॉर्डर्स करूंगा मेरे सारे लाइंस अब ब्लू हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं अपने लाइन का टेक्सचर भी चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे डॉटेड लाइंस चाहिए तो मैं डॉटेड लाइंस भी डाल सकता हूं, डबल बॉर्डर लाइन चाहिए डबल बॉर्डर लाइन डाल सकता हूं, एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ अदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। अभी के लिए हम इसको ब्लू ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को एक हेडर दे दें। सो व्हाट विल डू, हमने ये कॉलम, ये रो सिलेक्ट किया हमने और अब हम यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट करने के बाद हमें एक रो ऊपर मिल जाता है और हमारा पूरा डेटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ वी वांट टू प्रोबेबली गिव इट अ हेडर एज टॉप बैटिंग परफॉर्मेंस। Now when I give the header, I see that the data is already center aligned. So I go ahead and click the left align. But अभी भी डेटा मेरा सेंटर में नहीं आया मेरे पूरे बॉक्स के या मेरे पूरे ग्रिड के, और हमें यह भी दिख रहा है कि सारे सेल्स जो है वो इंडिविजुअल सेल्स अभी भी है और डेटा बीच में कैसे आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे या सारे सेल्स सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट में वापस एक और सेक्शन है जिसे हम कहते हैं मर्ज इन सेंटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे सेल्स जो है ये एज वन हो गए हैं। अभी ये पूरे सेल का डेटा A1 हो गया है, ये पूरे सेल का रेफरेंस A1 हो गया है। पहले हर एक सेल का A1 था, B1 था, C1 था, अब ये पूरा सेल A1 ही माना जाता है। सो whenever I go anywhere and I will write A1, it will select the entire section. अगर मुझे कोई एक कॉलम डिलीट करना है तो मुझे इंडिविजुअली वो कॉलम, मैनुअली वो कॉलम माउस से सिलेक्ट करके ही डिलीट करना होगा। सो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं और एक हेडर फॉर्मेट दे सकते हैं अपने ग्रिड को, अपने डेटा को। अब ये जो डेटा है इसमें फॉर एग्जांपल हम ये दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर को या जो ये डेटा देखेंगे उनको कि कोई भी बैट्समैन अगर 10% से ज्यादा 100 स्कोर किया है सो इट इज अ गुड डेटा और वो डेटा ग्रीन दिखना चाहिए। तो हम अपने व्यूअर को या हमारे जो डेटाबेस देख रहा है उसको ये बताना चाहते हैं कि हमें कंडीशन दे रहे हैं, उसके बेसिस पे मेरा डेटा फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया,
और अब ये स्टाइल्स वाले सेक्शन में जाकर के मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल डालूंगा। तो मैं उसके लिए हम यूज करेंगे मैनेज रूल्स, या हम स्ट्रेट अवे जाकर के न्यू रूल पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही न्यू रूल पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वी शुड सिलेक्ट द सेकेंड डायलॉग बॉक्स। बाकी के डायलॉग बॉक्सेस कॉम्प्लिकेटेड है और उसको यूज करने के लिए हम आगे जब एडवांस में थोड़ा जाएंगे तो किस तरह से हम डैशबोर्डिंग में उसको यूज करेंगे वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए बेसिक जो हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह काम आएगा या हम इसके थ्रू अपना 90% काम कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो वी विल यूज फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, और इसमें पहला सेल वैल्यू ही सिलेक्टेड रहेगा, बिकॉज हम डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारा सेल का वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर है तो आप सेल को फॉर्मेट करिए। तो इसमें हम ये कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, देन मेरा जो सेल है जो हम फिल करेंगे सेल को ग्रीन कलर से फिल कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर फॉन्ट को भी चेंज करना, फॉन्ट के कलर को भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर मुझे व्हाइट डालना है तो व्हाइट भी हम डाल सकते हैं। तो अब ये डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। जब सेल में वैल्यू ये रहेगा तो डेटा ऐसा दिखेगा। ये एक प्रीव्यू आपको दे रहा है। अब जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारा सारा डेटा उस हिसाब से फॉर्मेट हो जाता है। नाउ इफ आई हैव टू प्रिंट दिस डेटा, आई विल गो टू फाइल and I will click on print option. Once I click on print option, I can see how the data is looking at. And as soon as I click the escape button, I will have a dotted line here, which will basically say कि मेरा डेटा इतना ही है, इतना दिख रहा है, मतलब ये पेज के अंदर है। अगर मैंने अभी यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दिया तो आप देख रहे हैं ये जो परसेंटेज का कॉलम है ये इस हाईलाइटेड लाइन के बाहर चला गया है। नाउ इफ आई गो अहेड एंड ट्राई टू सी हाउ माई प्रिंट प्रीव्यू विल लुक लाइक, सो आई विल सी दैट नाउ आई हैव 2 पेज डेटा हियर। सो मेरा ये डेटा बाहर निकल गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो प्रिंट फॉर्मेट में है कि नहीं on when we want to print our data. So this was all about how you will input data in Excel and how you will format it for a basic reporting. You can use these things that I mentioned today to create some expenditure reports, to create some sales report, and so on and so forth. Thank you for watching the video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इस पूरे वीडियो में मैंने टाइमलाइन डाल के रखा है ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कभी भी रेफर करना हो, आपको पूरा वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के वो टॉपिक को रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप रॉकिंग।